Students, today we will discuss our new chapter number 4, determinants in class 12th mathematics. Before starting this chapter, we should know the meaning of determinants. Means what is a determinant? My dear students, you know very well about a square matrix. A square matrix is a matrix in which number of rows and columns are same. Let us take an example of a square matrix. A is equal to 1, 2, 3, 4. This is a square matrix of order 2 by 2. Let us take one more example of square matrix. We can write A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It is a square matrix of order 3 by 3. You know very well, matrix is an ordered rectangular array of the numbers of functions. Numbers may be either real or imaginary. These are the numbers arranged in the rectangular form. But here it is not a rectangle, it is a square because number of rows and columns are same. Means it is an array, okay, of the numbers along the rows and columns. But determinant is a number that is associated with every square matrix. I repeat again, determinant is a number. Number may be either real or complex, associated with every square matrix. Means I have written two square matrices here, and with every square matrix, this one and this one, a number is associated, and that number is said to be determinant. So we can define determinant is a number, you can say either real or complex, associated with every square matrix, is called determinant of that matrix. Every square matrix. तो बेटे डिटर्मिनेंट क्या है? इट इज ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. हर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल में लिखी, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक कोई ना कोई नंबर एसोसिएटेड होता है. अभी निकालेंगे वो नंबर भी कैसे निकलेगा. वो जो नंबर होगा आपका, वही आपका डिटरमिनेंट होता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का. तो यहाँ से एक कंक्लूजन हुआ बेटा कि जो डिटरमिनेंट है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है, बाकी मैट्रिसेस का हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते. मीन्स डिटरमिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस. मान लो बेटे मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन. सो वी कैन रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेशन. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज आइदर you can write dat dot a. It is also the representation of determinant of this square matrix A, or you can write the matrix within the two vertical lines. This is also the representation of the determinant of this matrix A. So you can either represent by determinant dat of A, or write a matrix A that must be square matrix within two vertical lines. These are the two representation of the determinant. तो बेटा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम दो सिंबल से कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं. या तो आप ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिखें. लेकिन बेटा यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, कुछ बच्चे इसको मॉडुलस कह देंगे. मॉडुलस सर इट इज ए मॉडुलस. नो बेटा नो. व्हेन वी राइट एनी मैट्रिक्स or specially a square matrix, because determinant is possible only for the square matrices. जब हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल लाइंस के बीच में, तो ये मॉडुलस नहीं होता उस टाइम पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो इस केस में बेटे आपका ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बेटे. इसको मॉडुलस नहीं कहना, ये डिटरमिनेंट है आपका ए का. अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा कि स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ नंबर एसोसिएटेड कैसे होता है. हाउ टू फाइंड दैट नंबर, ओके, विच इज एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, लेट्स डू. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाय वन. लेट अस टेक हाउ टू ओपन the determinant of a square matrix of order 1 by 1. Suppose let A is a matrix
which is a square matrix of order 1 by 1 having only one element, that is A. If we want to find the determinant of A, so we are to write this matrix like this. The main representation form of the determinant means vertical lines और बेटा फिर मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट होगा बेटा, जब भी यहाँ पे 1 by 1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी तो जो भी एलिमेंट है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह आपको वर्टिकल लाइन लगानी है, तो जो एलिमेंट है वही आपका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट. तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब आपकी 1 by 1 ऑर्डर की है तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे है बेटा वही आपका डिटर्मिनेंट होगा. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. मैंने एक मैट्रिक्स लिखी बेटे ए, इसके अंदर एलिमेंट लिखा बेटे 3 and I want to find the determinant of this matrix. Definitely it is a square matrix of order 1 by 1. If you want to find the determinant of this matrix, so write it determinant of A. Okay, remove the square brackets and write the vertical lines here. You can say the determinant of 3 and answer is always 3. जो भी आपका एलिमेंट है वही आपका आंसर बनेगा. Let us take one more example. If A is a matrix of order 1 by 1 having element -1, एक ही एलिमेंट मिलेगा. एंड यू वांट टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट इन डिटरमिनेंट फॉर्म एंड इट्स आंसर इज व्हाट -1. मीन्स जो भी आपका एलिमेंट होगा 1 by 1 के, जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जो भी आपका एलिमेंट होगा वही आपका डिटरमिनेंट होगा. इसको बेटा -1 को +1 नहीं कहना. क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है. क्यों नहीं है मॉडुलस? क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जब वर्टिकल लाइन्स हम लगाते हैं तो मॉडुलस नहीं है, वो नहीं होता, वो होता है हमारे पास डिटरमिनेंट. तो जब 1 by 1 ऑर्डर की जो कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो जो भी उसके अंदर एलिमेंट है वही आपका आंसर आएगा. अब बेटे आप करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. अब 2 by 2 ऑर्डर की लेते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स. लेट A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22. लेट अस टेक द जनरल फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. तो 2 रो है बेटा, 2 कॉलम है. और बेटा इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है. तो सो राइट फर्स्ट इट विद इन द वर्टिकल लाइन्स, रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट्स, मीन्स राइट इन द डिटरमिनेंट फॉर्म. तो A21, A22. तो बेटा ये है प्रिंसिपल डायगोनल. अब देखो 2 by 2 का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करना है. ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है. सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, मीन्स A11 इंटू A22. अब बेटे माइनस करना है जो आपका सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट को, A12 इंटू A21. डिटरमिनेंट को कह सकते हैं, डिटरमिनेंट इज सिंपली इट इज ऑल्सो अ फंक्शन. फंक्शन भी हम कह सकते हैं फ्रॉम m to n. फ्रॉम m to n means determinant is a function from m to n where m is what? Set of all square matrices. all square matrices, जितनी भी आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस है उनका सेट. और n क्या बेटे? सेट ऑफ ऑल द नंबर्स. ऑल द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स. कोई भी आपके नंबर हैं, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उनका सेट मैंने कंसीडर कर लिया बेटा n यहाँ पे. तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स लेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स लेगा. और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये लेगा तो ये कोई ना कोई आपको क्या देगा? कोई ना कोई नंबर देगा. तो एक तरीके से डिटरमिनेंट आपका एक क्या है? फंक्शन भी है. फ्रॉम m to n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे, कोई ना कोई आपको नंबर देगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट आपका क्या है कि फंक्शन भी है. तो डिटरमिनेंट को हम फंक्शन कह सकते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स लेगा और आपको क्या देगा? कोई ना कोई नंबर देगा. वो आपका नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी. तो 2 by 2 का कैसे सोल्व करना है बेटे? आपने प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है पहले, उसमें से माइनस करना है सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को. एक दो एग्जाम्पल लेते हैं बेटे इसके. 2 by 2 मैट्रिक्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं बेटे, और उसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है हमें. जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4. वी आर टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. कितना ऑर्डर है बेटा इसका? 2 by 2. एंड वी आर टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. देन हाउ कैन वी सोल्व इट? राइट फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ A, remove square brackets, write in determinant form.
बाय यूजिंग द वर्टिकल लाइंस। और बेटे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस अब सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स को, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा बेटे -2। तो ये आपका नंबर आया ना बेटे, ये क्या आपका नंबर है। ये क्या थी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या एसोसिएटेड हुआ, एक नंबर हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या एसोसिएशन हुआ, एक नंबर, और इस नंबर को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है मेरे पास कोई भी, √2 √3 √3 और √2। वी आर टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो कैसे निकालेंगे बेटे, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें इसको, √2 √3 √3 और √2, जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले करना प्रिंसिपल डायगोनल को, बस बेटा ये ध्यान रखना, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो √2 इंटू √2 2 माइनस √3 इंटू √3 3, 2 - 3 -1, तो ये आपका नंबर आ गया। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ नंबर एसोसिएशन मिलेगा। कोई और मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे मान लो ए है मेरे पास, log a विद बेस b 1 1 log b with base a. We are to find the determinant of this matrix. Simply we can find, first write in the determinant form, log a with base b 1 1 log b with base a. Now find the value of this determinant बेटा। सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो log a with base b इंटू log b with base a माइनस 1 1 जा 1, ये सभी को आता है बेटा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। जो एंगल है तो अब ऊपर न्यूमरेटर में, और जो बेस है वो एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं log b इंटू इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a। log की प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, कितना बचेगा बेटा 1 - 1, कितना है बेटा 0। तो मैंने बहुत सारे केस करके दिखाए बेटा 2x2 के, और सब में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी हमने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ली है उसका कोई ना कोई आंसर जो है नंबर आया है। तो इस तरीके से मैं डिटरमिनेंट को कह सकता हूँ, इट इज़ ए फंक्शन फ्रॉम m मीन्स सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस टू नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, तो मीन्स जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे डिटरमिनेंट उस पर अप्लाई करेंगे, आंसर आपका नंबर आएगा। ओके बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2x2 का था, होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। अब करते हैं बेटे जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास, हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा 2x2 तो हो चुका है हमारे पास। अब सबसे इम्पोर्टेंट करते हैं बेटा हम डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। और बेटे 12th क्लास तक 3x3 तक ही आपको ऑर्डर मिलेगा, इससे आगे आपका सिलेबस में नहीं है। वैसे 4x4 के भी होते हैं, 5x5 के भी होते हैं, लेकिन टिल 12th क्लास वी हैव टू स्टडी टिल ऑर्डर 3x3। तो बेटे इस जब भी आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बेटा 3 मेथड है। नंबर 1 एक्सपेंडिंग मेथड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग एनी रो और कॉलम मेथड। अभी बताऊंगा बेटा ये कैसे, कॉलम मेथड। नंबर 2 है यहाँ पे बेटे हमारे पास सारस डायग्राम, 1 by 1 डिस्कस करेंगे बेटे इनमें। और नंबर 3 है बेटे बाय यूजिंग कोफैक्टर्स, बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स भी अभी हमने नहीं स्टडी किया है, आगे आएगा बेटा। तो एक जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूँ पहले मैं, मैंने एक मैट्रिक्स ली जनरल, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3x3 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है बेटा, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी 3x3, पहला मेथड कर रहा हूँ मैं एक्सपेंडिंग मेथड, जब भी 3x3 का ऑर्डर दे रखा हो आपको मैट्रिक्स का, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बेटे कोशिश करनी है उसको हमें रिजोल्व करना है, एक्सप्रेस करना है 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में। और 2x2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, पीछे हमने किया है अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें, डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A13 ऐसे बेटे
A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बेटी इसमें आप ये देखिए 3 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो आप 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। आप R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के कर सकते हैं, R3 के कर सकते हैं, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 और C3, चॉइस इज योर्स। तो बेटे मैं आपको पहले R1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले बेटा मेथड समझिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 पहले समझिए कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा बेटा, R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं R1 के अंदर, 1 बाई 1 लेने हैं, 1 बाई 1 एलिमेंट्स लेने हैं सभी। तो सबसे पहले एलिमेंट लिया मैंने A11, इसके इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर, ये है I की वैल्यू, ये है J की वैल्यू, I प्लस J। ध्यान दे बेटा, A11 एलिमेंट लिया, इसकी मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, -1 की पावर I प्लस J, ये I की वैल्यू है 1, J की वैल्यू है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने एक डिटर्मिनेंट से जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, और डिटरमिनेंट बनेगा कैसे, जिस भी रो और कॉलम में A11 है, A11 फर्स्ट तो रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़ दें, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका 2/2 का डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे। फर्स्ट रो को छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, तो क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33, तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपका बन जाएगा। अब यही सेम प्रोसीजर आपको जितने भी R1 के अंदर एलिमेंट्स हैं सभी के ऊपर फॉलो करना है। अब अगला एलिमेंट और प्लस करते जाना है। अगला एलिमेंट लिया A12, अब बताएंगे A12 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, सबसे पहले -1 की पावर I प्लस J, 1 + 2 और 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, A12 जिस भी रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, जिस रो में है उस और कॉलम में है उसको छोड़ दें, मीन्स ये एलिमेंट फर्स्ट तो रो में लाई करता है और सेकंड कॉलम में, इसको छोड़ दें, बाकी लिख दें A21, A23, A31 और A33। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बेटा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं इसको, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी टिप्स पे हो जाएंगी चीज़ें। अब ऐसे तीसरा एलिमेंट बचा A13, बताएंगे इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले किसके साथ करूँ, -1 की पावर I प्लस J, 1 + 3 और 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी बचेगा, ये छोड़ दी और ये छोड़ दी, तो ये बच गया, तो इसको आप लिख दें A21, A22, A31 और A32। अब इसको सोल्व कर दें बेटा, जो भी आपका आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे, देखो -1 की पावर 1 + 1 तो 2 हो गया, 1 + 1 2 होता है, A1 नंबर है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपका प्लस हो गया, तो A11 और इसके साथ अब इसको सोल्व करें। इसको सोल्व सभी को आता है करना 2/2 ऑर्डर का, पहले प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकेंडरी वालों को करेंगे, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब आगे देखो बेटा 2 + 1 3, ये तो ओड है, -1 की पावर 3 -1 देगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, A12 एज इट इज़, माइनस का आएगा ध्यान रखना, और इसको सोल्व करने पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, सीजर चलानी है एक तरीके से, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। अब इसको करें बेटा 3 + 1 4, -1 की पावर 4 तो प्लस बन जाएगा, और प्लस इधर है, प्लस इंटू प्लस, प्लस A13 इधर लिख देता हूँ बेटा, प्लस A13 और इसका डिटरमिनेंट सोल्व करें, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको, तो A21 की A32 के साथ, तो A21 A32 माइनस A31 इंटू A22। तो इसको सोल्व कर लें बेटा, जब भी आप, अब यहाँ तो वैल्यू नहीं दे रखी है मैंने, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका कोई ना कोई नंबर आएगा, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंडिंग मेथड ये है, अभी थोड़ा लेंथी लगा है ये, अब प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे इसको एक ही उसमें। अब बेटा 2 बातों का ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ कि सर मेरे पास 3 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं, किस रो या कॉलम के अलोंग मैं एक्सपेंड करूँ। तो सबसे पहले ये देखना कि उस डिटरमिनेंट के अंदर
उस रो या कॉलम को चूज करो जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं, जिस रो या कॉलम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं। तो अगर जिस भी रो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं उसी के अलोंग एक्सपेंड करना, आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। क्यों? जीरो जीरो से जब करेंगे तो ये जीरो जीरो जल्दी जल्दी बन जाएगा। और अगर किसी के अंदर जीरो है ही नहीं तो फिर तो आपकी चॉइस है बेटा किसके अलोंग करेंगे, फिर तो किसी के अलोंग करना। दूसरी चीज़ बेटा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करें। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा शॉर्ट में कोशिश करें। जैसे मैंने हर स्टेप में इनसे मल्टीप्लाई किया मैंने -1 की पावर i + j। अब आप हर स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके ना दिखाएं। क्यों? आप डायरेक्ट इसके प्लेस पे प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू i + j। अगर i + j आपका इवन है तो आप डायरेक्ट प्लस का साइन यूज करें, अगर i - j आपका ओड है तो आप डायरेक्ट माइनस का साइन यूज करें। तो मतलब आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। जैसे a11 है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे a11 1 + 1 2 इवन है ना, तो यहाँ पे लिख लो प्लस। a12 3 ओड हो गया ना, 2 + 1 3 ओड, तो यहाँ आएगा माइनस। a13 3 + 1 4 इवन है तो यहाँ आएगा प्लस। ऐसे बाकी में कर सकते हैं। a21 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस, a22 है तो माइनस, a23 है तो एक मिनट a21 2 + 1 3 ओड है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, a22 इवन है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, a23 आपका ओड बन गया 2 + 3 ओड है तो माइनस। ऐसे ही a31 3 + 1 4 इवन है तो प्लस, ऐसे फिर यहाँ पे माइनस, ऐसे या फिर यहाँ पे प्लस। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, इधर a11 तो ये प्लस का है, a12 ये माइनस आएगा, माइनस आ चुका है, a13 3 + 1 4 तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे। तो मीन्स आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये ध्यान रखना प्लस माइनस का डायरेक्ट यूज करना है। दूसरी चीज़, उस रो या कॉलम को प्रेफर करना जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रो जीरो हैं, और जीरो है ही नहीं किसी के अंदर, फिर आपकी चॉइस है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। किसी भी रो या कॉलम के अलावा एक्सपेंड करें, आंसर सेम आएगा। मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास A 1 2 3 3 2 1 4 5 6। वी आर टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें 1 2 3 3 2 1 4 5 6। अब आप इजीली कर सकते हैं। अब जीरो तो किसी में है ही नहीं, तो चॉइस आपके किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो। मान लो मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मान लो R1 के अलोंग आपने एक्सपेंड किया तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ चलो, ये 1 1 एलिमेंट होता है तो यहाँ प्लस आएगा, ये A12 एलिमेंट होता है तो ओड है तो माइनस, ये A13 है तो इवन है तो प्लस। ऐसे लिख लो बेटे, और एक दो क्वेश्चन में लिखना, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ये एलिमेंट लिया 1, ऊपर प्लस का साइन है तो 1, और क्या आएगा बेटा, अब डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट को भी डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करें। चलो पहले करके दिखा देता हूँ मैं, कोई नहीं। अब 1 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ दें, बाकी लिख दें 2 1 5 6। अब आगे -2 है तो -2। अब -2 जो है जिस भी रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, इसको छोड़ दें, बाकी देखो क्या बचा 3 1 4 और 6। अब +3, जितने भी एलिमेंट है सभी लेने हैं बेटा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 2 4 5। सोल्व कर दो बस आपका आंसर 1। इसको सोल्व करना आता है, पहले इसकी मल्टीप्लाई 12 -5 -2। अब इसकी पहले 18, 6 3 = 18, 4 1 = 4 +3 15 -8। अब इसको सोल्व कर दें, यह आएगा 7 1 = 7, 14 -28 हो जाएगा, और 7 3 = 21, तो 28 -28, योर आंसर इज 0। तो देखो फिर वही चीज़ें आ गई, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ये आपका नंबर आ गया। एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ली, डिटरमिनेंट निकाला तो आपका नंबर आया। तो एक तरीके से फंक्शन हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का, और क्या देगा जो हमारे को नंबर। ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि ये डिटरमिनेंट बिना लिखना पड़े, आप डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन करने लग जाए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास A 2 3 4 1 2 5 6 7 1। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे,
पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखें 2 3 4 1 2 5 6 7 1। अब किसी क्या लॉन्ग कर दो। अब मैं आपको C1 क्या लॉन्ग करके दिखाता हूँ। ये है C1 क्या लॉन्ग करेंगे, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, C1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, किसी के अलोंग कर लो आंसर सेम आएगा। तो पहले वही साइन बेटा, ये A11 एलिमेंट है तो प्लस आएगा। अब ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है 2 + 1 3, ओड है तो माइनस, और फिर ये हो जाएगा प्लस। अब C1 में चलना है इसे, पहला एलिमेंट लूँगा इसका तो 2 के साथ डिटरमिनेंट अब क्या आएगा, अब 2 ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, सीधा करने लग जाओ। 2 × 1 = 2 - 35। डैट कोशिश करें बेटा करने की। उसके बाद आएगा -1। अब डिटरमिनेंट देखो कौन सा बनेगा, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो। पहले इनकी मल्टीप्लाई 3 और 7 × 4 = 28। अब अगला बेटा +6 लिया। अब ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, ये बच गया 2/2 का। अब इसको डायरेक्ट यहीं सोल्व करने की कोशिश करें बेटा, यहाँ लिखना ना पड़े आपको। 5 × 3 = 15, 4 × 2 = 8। तो ये बचेगा बेटा -33, 2 = -66, 3 - 28, ये हो गया आपके पास -25 -1 +25, 15 - 8 7, 6 = 42। तो सोल्व कर दो बेटा, -66 प्लस ये आपका हो जाएगा 67, यू विल गेट आंसर 1। तो फिर देखिए ये आपका मैट्रिक्स थी और ये आपका नंबर, ये मैट्रिक्स और ये आपका नंबर, और लग गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो ये बन गया फंक्शन। इट इज ए फंक्शन फ्रॉम M स्क्वायर मैट्रिक्स टू नंबर। ओके बेटा, तो ये है एक्सपेंडिंग मेथड। आप कर सकते हैं बड़ी इजीली, आप प्रैक्टिस करें। एक ही क्वेश्चन को आप 6 तरीके से करें, R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से करके देखें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आंसर तो सेम आएगा ही आएगा। अब 3/3 ऑर्डर का ही करते हैं दूसरे मेथड से, डेट इज सारस डायग्राम। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं बेटा इसको। अब करते हैं सारस डायग्राम। हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 बाय यूजिंग सारस डायग्राम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इसी को बोलते हैं बेटा। मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि मान लो हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। एक मैट्रिक्स है A11, जनरली ले रहा हूँ A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3/3 ऑर्डर की है बेटा। हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है सारस डायग्राम से। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता ही अच्छे से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, जल्दी जल्दी से लिखने, A31, A32 और A33। कैसे करेंगे बेटा, सारस डायग्राम क्या कहता है, पूरे डिटरमिनेंट को एज इट इज़ लिख दो, पूरे डिटरमिनेंट को एज इट इज़ लिख दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सारस डायग्राम क्या कहता है, इस डिटरमिनेंट को एज इट इज़ लिख दें। A11, A12, A13, A21, A22, A23, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ बेटा इसका। अब जो पहली 2 कॉलम है उनको एज इट इज़ शिफ्ट कर लो, पहली 2 कॉलम को एज इट इज़ शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा A11, A21, A31, और दूसरी है A12, A22 और A32। अब 3/3 ऑर्डर का है ना, तो 3 एलिमेंट के डायगोनल बनाने हैं, 3 के। पहले ऐसे चलेंगे, ध्यान रखना ऐसे, तो ये तो 1 है नहीं, ये 2 है नहीं, 3, तो डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। 3 के होने चाहिए, 3। अब आगे 2 बनेगा, 1 बनेगा, वो नहीं लेने, 3 एलिमेंट के बनाने हैं ऐसे। क्या करना है, अभी इनकी मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करते जाओ। ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो, A11, A22, A33, पहले बड़ा हो गया। अब अगला ऐड करते जाओ, A12, A23, A31, ये भी हो गया। अब अगला प्लस करते जाओ, A13 मल्टीप्लाई करो और प्लस करते जाओ A32, पहले ब्रैकेट तैयार। अब माइनस करके फिर ब्रैकेट लगा लेना, माइनस करने, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल्स हो गए ना। अब चलना है ऐसे, फिर 3 के बनाने हैं, यहाँ से चलो पढ़ो, मान लो ये 1 है, ऐसे चलना है तिरछा, ये 1 नहीं लेना,
ये 2 नहीं लेना, ये हो गया 3, डॉटेड में ले लो ताकि आप बाइफरकेट कर सको। एक तो ये हो गया 3 का, एक ये हो गया 3 का, ऐसे डायगोनली चलना है, एक ही हो गया 3 का, ये 2 है, ये 1 है, ये नहीं चलना, ऐसे चलना है बेटा तिरछा स्लंटिंग। 3-3 के बनाने हैं, 3x3 ऑर्डर का दो, 3-3 एलिमेंट्स के बनाने हैं। फिर वही काम मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाओ, किसी को कर लो, पहले इनको कर लो, A12 A21 A33 जोड़ते जाओ, A11 A23 A32 जोड़ते जाओ अगले के, A13 A22 और A31। तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका डिटर्मिनेंट होगा। डेल्टा से भी नोट कर सकते हैं सिंपली, डेल्टा इसको बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा डायरेक्ट। फिर कह रहा हूँ कैसे करना है, एज इट इज डिटर्मिनेंट लिखें 3/3 का, उसके बाद पहले 2 कॉलम एज इट इज पेस्ट कर दें इधर। पहले चलना है प्रिंसिपल डायगोनल, 3-3 का लेना है इसे, उसके बाद यहाँ से चल पड़ो आप, फिर 3-3 का लेना है। तो एक जगह मैंने डायरेक्ट लाइन लिखी है, एक जगह डॉटेड लाइन लिखी है। मल्टीप्लाई करते जाओ पहले और ऐड करते जाओ, एक ब्रैकेट लिख लो, फिर इधर चलोगे मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, ये इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन के हेल्प से बताता हूँ, ये है आपका जनरल मेथड। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से लेते हैं, वो जल्दी हो जाएगा, देखते हैं। जैसे बेटे सारस डायग्राम की हेल्प से, ये आपको याद नहीं रखना है, कहीं रिजल्ट याद रखने रख जाओ। सारस डायग्राम की हेल्प से मेरे को सोल्व करना है डिटरमिनेंट 1 3 5 2 1 3 1 3 4। तो सारस डायग्राम की हेल्प से कैसे करोगे, पहले इसको एज इट इज लिख दो, 1 2 1 3 1 3 5 3 4। पहली कॉलम दूसरी कॉलम को एज इट इज पेस्ट कर दो, 1 2 1 3 1 3। अब सिंपल आप कर सकते हैं। तो डेल्टा कैसे निकलेगा, 3-3 के लेने पहले ऐसे, ये 1 2 नहीं, ये बन गए 3 एलिमेंट, ये बन गए 3 एलिमेंट, ये बन गए 3 एलिमेंट, आगे 2 1 नहीं लेना, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 4 1 जा 4 1 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 1 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 6 5 जा 30। माइनस करना है, अब चलना है ऐसे 3-3 के, ये तो 1 है नहीं, ये 2 है नहीं, 3 डॉटेड में ले लेते हैं ताकि आप आसानी से पता लगा सकें। एक ये बन गए 3, जैसे 10th क्लास में करते थे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो करो बेटा, 5 1 जा 5 1 जा 5, ऐसे जोड़ते जाना है, 3 3 जा 9 1 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, अब कर दो इसको सोल्व, ये तो आता ही है। ये हो गया 13 और ऐड करेंगे इसमें 30 में 13 ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपका 43 माइनस ये हो गया 14 और इसमें ऐड करेंगे तो 38, आंसर आ गया बेटा 5। तो देखो फिर वही है, ये आपके एक डिटरमिनेंट है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, आंसर क्या दिया नंबर, तो ये फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये है सारस डायग्राम। लेकिन बेटे सारस डायग्राम को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि सारस डायग्राम 3/3 के ऑर्डर तक ही पॉसिबल है, और 3/3 से ज़्यादा का डिटरमिनेंट अगर हम लेते हैं उसको सोल्व करते हैं तो सारस डायग्राम वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं करते। लेकिन 3/3 तक ये शॉर्टकट मेथड है, थोड़ी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसको बेटा अच्छे से करें। बस इस वीडियो में इतना ही बेटे, इसमें बस केवल यही था कि डिटरमिनेंट को कैसे आप ओपन करते हैं। बाकी अगले कंसेप्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी एक्सरसाइज, तो इनकी प्रैक्टिस करें बेटा जितना ज़्यादा हो सके। ओके बेटे, थैंक यू।